Hello students, how are you all? Welcome to our channel Weekend. Today we will discuss the question answer of chapter number 5 of geography, that is industries. Okay, so let's start with the very short question answer. First question is define the term manufacturing. So the term manufacturing refers to transformation of raw materials into valuable goods या value added products. Very simple. Which Indian city is known as the Manchester of India? So Ahmedabad is known as the Manchester of India, and you know why. Question number 3 is list out the physical and human factors of industrial location. So factors of industrial location is like physical factors, land है, रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर है, पावर है, एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ कोर्स कैपिटल है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड मार्केट. ओके, ये दो तरह के फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के उसमें. Question number 4 is state any 4 industrial regions of the world. So 4 industrial regions are: first is Great Lakes industrial regions of North America, second is Ruhr industrial regions of Europe, third is London is industrial region, and fourth is Ural Ukraine industrial region of Russia. Okay. Question number 5 is what do you mean by information technology? So the information technology refers to the storage, processing and distribution of information. ठीक है, इन सबको ये कैसे करता है. ठीक है. Now the short question answer. So first very short question is explain how industries are classified on the basis of raw materials. So we know the industries can be classified on the basis of raw materials also, that is used as first agro based industries, mineral based industries and ये दो बेस्ड हैं. तो एग्रो बेस्ड में क्या होता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर कल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्रीज, जूट टेक्सटाइल एटसेट्रा, है ना. And second is mineral based industries. They get their raw materials from minerals. For examples, iron and industrial, steel industry, cement industry and fertilizers industry. इसी तरह के एग्जाम्पल इसमें आएंगे. Okay. Now the question number 2 is how would you distinguish between large scale and small scale industries? So of course large scale industries consume extensive raw materials whereas small scale industries consume less raw material. Large scale industries invest more than 1 crore, and small scale industries invest 1 crore or less, and large scale industries production is on large scale and small scale industries production on small scale, है ना. ये इसका फर्क है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन व्हाट वेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज डिफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. सो public sector industries, so these industries are owned and run by government or its agencies. For example, BHEL है ना, BHEL है, SAIL है. और private sector industries are owned and run by an individual or a group of individuals. For example, TISCO है या टाटा है, कुछ इस तरह के जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं वो इसके एग्जाम्पल है ना. Now the question number 4, explain how the farmers benefit from the establishment of industries as these are generally located near the major towns. So farmer produce a variety of agricultural goods. Many of these agricultural produce are used in the factories as raw materials. Farmers get good prices of their produces as the utilization of agricultural produce
in factories add more values to it. In some parts of India, the farmers have formed cooperative societies to get fair price for their produce, and in this way the factories have added value to the agricultural produces of the farmers. This is the true about the agro waste industries. In case of other industries, the large scale working population in these industries provide a good market to the agricultural produce in the surrounding areas of the industrial embellishment. Okay, hope you understand what are they trying to say in this question. कि एग्रोकल्चर बेस्ड जो प्रोड्यूस होते हैं वो अपने आप में भी रॉ मटेरियल है और एज ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन के भी वो कई जो उसके सराउंडिंग फैक्ट्रीज़ हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। तो अपने आप उनकी वैल्यू लेने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन लेने के लिए जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या जितना उनका प्राइस बनता है वो हम उसको ले सकें, तो उसके लिए वो लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज़ काम करती है उनको प्रोवाइड करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्शन का जो है वो उस प्रोडक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कर सके, ये उनका मेन टास्क रहता है। ठीक है ना। Now the long question answer. So first question is explain the factors favorable for the development of the IT industry in Bengaluru. So the following factors are the favorable factors that have led to the development of IT industry in Bengaluru. That first is pleasant and pollution free climate throughout the year. यानी प्लेजेंट जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, प्लेजेंट रहता है, पोल्यूशन फ्री रहता है ना। एंड देयर आर मैनी लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISC, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और भी कई सारी जो है वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के, वो उससे एटमॉस्फेयर मिलता है, बनता है माहौल, है ना। एंड थर्ड इज़ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ हेल्प्ड सेटलर्स इवन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि जो एक नया इंसान आके बसता है शहर में तो उसको थोड़ी सी बेसिक जो नीड्स होती हैं वो उनको बहुत लो प्राइस पर लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाती है। वरना आप दूसरी जगह पे जाएं किसी नए शहर में बसना, सपोज हम बाहर जाके UK में बसना चाहे तो कितना रुपीस का और वहाँ पे पौंड चलते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस है। तो हम वो हमारे यहाँ की जो ज़्यादा मनी है वो जाके वहाँ कम हो जाएगी, और बाहर से अगर कोई इवन दो फॉरेन कंट्री से इंडिया में सेटल होना चाहता है तो उसके लिए भी लो कॉस्ट में अवेलेबल होना, तो उस हिसाब से भी जगह अच्छी है बेंगलुरु। एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वॉज द फर्स्ट टू सैंक्शन द establishment of IT industries, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको बहुत सपोर्ट है। फिफ्थ इज बेंगलुरु इज हाईली एसेसिबल बाय मीन्स ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड एयर। एसेसिबल मतलब बहुत मतलब रोड से भी, रेलवे से, एयर से, हर तरीके से कनेक्टेड है पूरे ऑल ओवर द इंडिया और वर्ल्ड में भी कई जगह से अप्रोच है इसकी, है ना। And the sixth is the city has a large number of skilled and experienced managers and executives. जब इतने सारे वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं तो ऑफ कोर्स इस तरीके के जो है पीपल भी अवेलेबल हो जाते हैं जो मैनेजर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी इंडस्ट्री को चलाना करना। तो उसमें वो आप जानते हैं कि बहुत ही एक पूरी बॉडी मिलके काम करती है, दिखना सामने सिर्फ एक चीज़ होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है ना। तो उससे स्किल्ड और एक्सपीरियंस पीपल भी इजीली अवेलेबल हैं वहाँ पे। Question number 2 is manufacturing industries are important for economic development of the country. Discuss. So manufacturing industries are important for the economic development of a country as they convert raw materials into valuable goods. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम ही यही है। सेकेंड इज जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। कौन करेगा सारा काम, मशीन्स तो नहीं करती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अपने आप। थर्ड इज रिड्यूस
डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल, ऑफ कोर्स जो हमारे नेशन की काफ़ी बड़ी परेशानी है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो उस चीज़ को भी ये है कंप्रेस करता है ना। ठीक है। फोर्थ इज़ हेल्प इन रिसीविंग रिडिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे एरिया में बनेगा तो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो पॉवर्टी भी कम होगी अपने आप, क्योंकि ये दोनों इंटर कनेक्टेड चीज़ें हैं ना। एंड फोर्थ इज अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो ऑफ कोर्स मैंने चैप्टर के डिस्कशन में भी बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें इंडियन रुपीस तो नहीं लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ही हमें मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत वो है, प्रॉफिटेबल थिंग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन पिट्सबर्ग एंड इन जमशेदपुर। वो कंपेयर भी करना है और कंट्रास्ट भी करना है पिट्सबर्ग और जमशेदपुर के इंडस्ट्रीज के, है ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री है ना उसको। So we can say first it is the most important center of iron and steel in USA, that is Pittsburgh, and Jamshedpur is the most important center of iron and steel in India। दोनों ही अपने अपने कंट्री के जो है इम्पोर्टेंट सेंटर हैं। सेकेंड इज फॉर एग्जांपल पिट्सबर्ग, देर आर मैनी लोकेशनल factors favorable for this industry, for example raw material iron ore, coal, है ना। और ये चीज़ है सेम, देयर आर मैनी लोकेशनल फैक्टर्स फेवरेबल फॉर जमशेदपुर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, लाइक वही आयरन ओर, कोल, वाटर, ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल दोनों जब इम्पोर्टेंट सेंटर है तो दोनों के पास ये तो होगी, फेवरेबल कंडीशन तो होगी। थर्ड इज in Pittsburgh, cheap inland water transport provided by the Great Lakes is an added advantages, and यहाँ पर जमशेदपुर में नो सच एडेड एंड एडवांटेजेस ऑफ चीप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ फाउंड, यानी कि जमशेदपुर के आसपास हमें कोई इस तरीके का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपस में जो छोटी छोटी नदियाँ एक प्लेस को दूसरे प्लेस से जोड़ती हैं, तो रोड के बजाय जो है वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर रहता है। वहाँ पर पिट्सबर्ग में उनके पास ये एक एडवांटेजेस है कि उनके पास जो इस तरह की लेक्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके। और इसके अलावा मतलब द रिवर्स हैं, ओयो है, मोंगाहेला है, एलिगनी है, प्रोवाइडेड वाटर, और यहाँ पर भी हमारे पास है सुबर्णरेखा है या खारकई है, ये इस लेक्स दोनों ही के पास हैं, तो ऐसा नहीं कि इसके पास एडवांटेज है उसके, क्योंकि रॉ मटेरियल के अलावा हमें वाटर भी जो है बहुत वो चाहिए, प्रोसेसिंग में वाटर भी चाहिए, तो वो भी होना चाहिए, तो वो दोनों के पास ही है। ठीक है। Now the question number 4, discuss the locational advantages for the development of the cotton textile industry in अहमदाबाद। अहमदाबाद को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था मैनचेस्टर कहते हैं, तो मैनचेस्टर इसी वजह से ही कहते हैं। So the Ahmedabad is situated on the bank of the Sabarmati river. In 1859, the first cotton mill was set up here, and it is called the Manchester of India. The following factors are responsible for the development of cotton textile in Ahmedabad. In the in that queue, first is availability of raw material. So Ahmedabad is located in the cotton growing एरिया, वहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। सेकेंड इज क्लाइमेट, सो द ह्यूमिड क्लाइमेट इज वन मोर प्लस पॉइंट। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कंडीसिव फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन। ठीक है ना, तो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से सूट करता है अहमदाबाद का क्लाइमेट कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इसको। ठीक है। Third is Ahmedabad is well connected with the other parts of India, therefore market is available। वो उसकी अवेलेबिलिटी है, कनेक्शन है आपस में, और आपने सुना ही होगा अहमदाबाद के रोड्स वगैरह सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है वहाँ पे, ये तो इसके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है ना। नाउ द फोर्थ इज सी पोर्ट ऑफ कांडला इज ऑल्सो नॉट फार अवे। तो वही हुआ कि इनलैंड जो है इंटर कनेक्शन है
थ्रू द वाटरवेज, तो वो वाटरवेज इजी पड़ते हैं, चीप चीप रहते हैं, वो प्लस पॉइंट भी है अहमदाबाद के पास। एंड अदर फैक्टर्स आर एब्यूरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, दोनों ही तरह का लेबर चाहिए होता है जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह का, तो वो सब अवेलेबल हो जाता है वहाँ पे, इसलिए अहमदाबाद में जो है ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज enlist 4 mitigation strategies to reduce the impact of industrial accident. The industrial accident can be reduced in the following way. Industrial area should be away from डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ऑफ कोर्स जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और वहाँ पे करेंगे, और सपोज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे जो लॉस्ट है वो ज़्यादा होगा, चीज़ों का मटेरियल का तो होगा ही होगा, ह्यूमन बींग्स का लॉस ज़्यादा बड़ा लॉस होता है वो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी वाली एरिया में अगर सिचुएटेड है तो ज़्यादा लॉस होगा। एंड उसको रिड्यूस करने के लिए ऑफ कोर्स कोई ऐसा एरिया चूज़ करना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। एंड द सेकेंड इज़ द पोल्यूशन लेवल्स शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड। तो एज यू गाइज नो कि इंडस्ट्री वगैरह जहाँ से रिलेटेड होती हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी पोल्यूशन रहता है, वाटर हो, नॉइस हो या एयर पोल्यूशन हो, तो बार बार ऐसी जगहों पे चेकअप होता रहना चाहिए कि क्या लेवल चल रहा है। जैसे कि अभी आप सुन ही रहे होंगे इन दिनों में दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। इवन दो लोगों को मतलब बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने को मना कर रहे हैं, न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें चेकअप मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम कि किस तरीके से हर चीज़ का लेवल सही है या नहीं। एंड और इवैक्यूएशन रूट शुड बी नोन टू वर्कर्स एंड पीपल, ये तो है ही, तो वर्कर्स और पीपल्स को मालूम होना चाहिए कि और क्या क्या इसके लिए हम कर सकते हैं। Now the fourth is alarm system and fire fighting system should remain up to date। यानी कि अलार्म सिस्टम या फायर फाइटिंग सिस्टम आपने देखा ही होगा कि ज़रा सा भी ऊपर सीलिंग में लगाते हैं दीवार में, जो ज़रा सा भी उनको हीट या इस तरह की होती है तो अपने आप पानी गिरना शुरू हो जाता है ताकि आग ज़्यादा नहीं फैले, या कहीं पे भी इस तरह की गैसेस लीक होती हैं तो अलार्म सिस्टम है तो ऑन हो जाता है। ये सिस्टम ऐसा नहीं हो कि भाई कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए उसके बाद चेक करें कि भाई ये तो ख़राब था, तो अप टू डेट रहना चाहिए, यानी कि सही है यानी कि मालूम रहना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उनके लिए कोई गाइडलाइन हर इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए तय करे कि भाई आपको ये करना ही है, अगर आप इस तरीके से इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये सब हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर इस सब को कंट्रोल कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like, comment and share. Goodbye, have a nice day ahead.